Let's talk about modern periodic table. Modern periodic table से पहले Mendeleev periodic table था, and that was based on the basis of atomic mass. This modern periodic table, it was presented by Moseley in 1913, and it is based on atomic number. You can see here H capital symbol है hydrogen का atomic number is 1. Similarly, lithium atomic number is 3. Then beryllium atomic number 4, and then boron atomic number 5, and carbon with atomic number 6. So Moseley atomic number was not based on the basis of atomic mass, but it was based on the basis of number of electrons or protons, or we say on the basis of atomic number. He presented this periodic table. Moseley का जो periodic table है, it consists of 18 groups. Now what are groups? The vertical rows, जो आपके पास vertical columns हैं, these are called as groups. Now you may see up to here, this is the first column, first row, this is second group, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, 12th, and then you may see 13, 14, and on the other side up to 18. So up to 18, these are the groups. So there are total 8 groups in the modern periodic table. Now there comes a second term. The second term is period. If there are 18 groups in the modern periodic table, then how many periods are there? He said that there are 8 periods. These horizontal rows means when we travel from left to right, these are called as period. The first period consists of 2 elements, hydrogen and helium. Okay, and it consists of 2 gases. The second period consists of 8 elements. These are lithium, beryllium, you may see boron, carbon, nitrogen, oxygen, F, fluorine, and neon. Okay, now see their atomic number. Atomic number is increasing along the period. 3 for lithium, 4 for beryllium, then 5, then 6, then 7, then 8, then 9, and then 10, and so on, and then 11, 12, and so on. So it means atomic number is increasing along the period, and there are total 7 period. This is the first period, consists of 2 elements. The second period and the third periods, these are called as short period. They consist of 8 elements. इसमें हमने देख लिया ये 8 elements हैं. इसी तरह से ये third period में सोडियम आ गया with atomic number 11, magnesium. Then comes aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, oxygen, and argon. Inert gas है, non-reactive. ठीक है, तो ये जो हमारे पास जो सेकेंड और थर्ड पीरियड है, दे ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स, और इस पीरियड को हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास पीरियड है ये शॉर्ट पीरियड है. अब ये जो फोर्थ पीरियड है, दिस वन एंड द फिफ्थ वन पीरियड, दे आर सेड टू बी एज very long periods. And then comes 6th period and 7th period. 6th period starts from cesium and 7th period starts from francium. Okay, now you have seen that so far we have discussed 18 groups and 7 periods, and I have told you that modern periodic table was based on the basis of atomic number or number of electron. Now what happened
with the sizes of elements. When we travel from uh, top to bottom in a group, we say the size increases down the group because the number of electron increases down the group. अब यहाँ पर जो number of electron है, it is 1. Then 3 for lithium, for sodium it's 11, and potassium 19, and so on. So when the number of electrons are increasing, it means more and more shells are required to accommodate the electron, and what will happen? The size will increase. As you may see here, यहाँ आप देख लें, ये मैंने आपको एस ब्लॉक दिखाया है, जो फर्स्ट आपको मैं ग्रुप दिखा रही हूँ. कुछ एलिमेंट्स शो किए हैं. हाइड्रोजन है, its atomic number is 1. It means 1 electron in the first shell. Then comes lithium. Okay, Li stand for lithium with atomic number 3. It means there are 3 electrons. According to rules, जो आपका first shell है, first जो orbital है, इसमें आएंगे 2 electrons, और जो बाकी बचेंगे वो आप next में लिखेंगे. तो third electrons come, or the valence electron is in the next orbital, and the size is also increasing. After lithium comes sodium. You may see here, this is the atomic number of sodium, 11. Now 1 and 2, 2 electron in the first shell, 8 electrons you may count in the next shell. 8 plus 2, 10. It means now 1 electron is left behind. It is in the valence shell. So you may see here that the size is increasing from hydrogen to lithium to sodium and on down the group as the number of electrons are increasing. Okay, so it means atomic size increases down the group. Now what happens with periods? अगर साइज की बात हो जाए तो एक सेकेंड पीरियड को देख लेते हैं. लिथियम के एटॉमिक नंबर है 3, then 4, then 5, 6, 7, 8, and so on. It means in this way एटॉमिक नंबर उस वे में इंक्रीज नहीं कर रहा. यहाँ पर 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, देन कम्स 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स. इट मीन्स एज कंपेयर टू ग्रुप the atomic size is not increasing along the period very well. हम कहते हैं डिक्रीज होता है अगर उससे कंपेयर करेंगे. जैसे कि यहाँ मैं आपको शो कर देती हूँ. ये हमारे पास है सेकेंड पीरियड. ठीक है, अब लिथियम है. लिथियम्स एटॉमिक नंबर इज 3, 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट शेल and 1 electron in the last shell. Okay, now see its size. Now compare its size with that of beryllium, almost same. Beryllium has atomic number 4, 2 electrons in the first shell and 2 electrons in the next shell. After beryllium comes boron. Boron has atomic number 5, 2 electrons in the first shell and 3 electrons in the valence shell. Again the size is almost the same. Then comes carbon. ठीक है, जिसको हम कोयला भी कहते हैं. ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है. तो 6 है तो इट मीन्स 2 electrons in the first and 4 electron in the outermost shell or the valence shell. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास देखने में ये आया कि जो एटॉमिक साइज़ है वो डाउन द ग्रुप तो इंक्रीज़ कर रहा है, अलोंग द पीरियड उस हिसाब से इंक्रीज़ नहीं कर रहा. ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ये तो हमने साइज़ डिस्कस कर लिया. ये आप सारा देख लीजिएगा. ये आपका सेकंड पीरियड है. इसी तरह से थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवन्थ.
आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो इतनी डिटेल में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा देखते हैं कि किन ब्लॉक्स में ये डिवाइडेड है। ये जो हमारे पास ब्लॉक्स हैं दे आर एलिमेंट्स हैं, दे आर डिवाइडेड इनटू ब्लॉक्स। वो ब्लॉक्स कैसे हैं यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ। मॉडर्न पीरियड टेबल में ये जो, एक मिनट देख लें, ये जो हमारे पास आता है फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, दिस ब्लॉक इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक। ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर पूछा जाए कि कौन से एलिमेंट्स हैं एस ब्लॉक के, तो आपने इस तरफ इशारा करना है। देन कम्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर दोज ऑन द लेफ्ट साइड। ये 13 to 18, ये बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये इस साइड पे, जो राइट साइड पे आते हैं, बिल्कुल, दीज आर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। अब बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक के दरमियान में जो हमारे पास एलिमेंट्स आते हैं, ये वाले, दे आर सेड टू बी डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये आपके पास एस, ये हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हो गए डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जो बॉटम पे हमारे पास हैं, दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके। अब इस एलिमेंट्स को हम क्यों कहते हैं कि दीज एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, आर कॉल्ड दैट दे आर प्रेजेंट इन एस ब्लॉक, बिकॉज एस ऑर्बिटल इज़ इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। आप देखेंगे कि आगे जाके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, जैसे इसका है हाइड्रोजन का 1s1 आता है, इसी तरह से लिथियम का 1s2, 2s1। तो जो हमारे पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो पाया जाता है एस ऑर्बिटल में। यहाँ पर जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो हमें मिलता है पी ऑर्बिटल में, यहाँ पर वो मिलता है डी ऑर्बिटल में, और यहाँ पर एफ ऑर्बिटल में। अब ये जो फर्स्ट हमारे पास है ग्रुप, इट इज़ कॉल्ड, द एलिमेंट्स आर कॉल्ड दैट they consist of alkali metals, alkaline by nature. Second जो हमारे पास ग्रुप है, the elements are called alkaline earth metals. ठीक है। अब जो periodic table है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पाई जाती हैं, यानी सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, सिंथेटिक्स हैं। नो व्हाट आर द सॉलिड्स? जनरली द सॉलिड्स ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो हैं वो मेटल्स हैं, और काफ़ी सारी पीरियोडिक टेबल में ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे घर में पाए जाते हैं। थोड़ी देर सोचिएगा। इस वक्त जो आपके पास सिंबल्स नज़र आ रहे हैं, दोज एलिमेंट्स विच हैव बीन शोन विद ब्लैक कलर, दे आर सॉलिड्स। ये सारे क्या हैं? सॉलिड्स हैं। मेजॉरिटी जो है वो सॉलिड है। अब लिक्विड्स कौन से हैं? दोज विच आर रिप्रेजेंटेड विद लेटर्स विद ब्लू कलर। ये Hg है। मरकरी देख रहे हैं, मरकरी इज फाउंड इन थर्मामीटर। मैंने आपसे कहा था कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपके घर में होते हैं, तो जाहिर बात है जब आपको बुखार होता है तो आप थर्मामीटर यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या ब्लिंक कर रहा होता है? सिल्वर कलर का Hg, जिसको आप अगर थर्मामीटर को तोड़ लें, हाथ पे रखेंगे, तो क्या होगा? ये ऐसा लिक्विड है जो कि आपके हाथ को गीला नहीं करेगा। मज़ा आया? अब इसी तरह से एक और एलिमेंट है, इट इज़ ऑल्सो इन लिक्विड फॉर्म, दैट इज़ ब्रोमीन। यहाँ पर देख रहे हैं 7th ग्रुप में। ठीक है। अब सॉलिड और लिक्विड आ गया। अब गैसेस कौन सी हैं? तो हम कहते हैं दोज विच आर रिप्रेजेंटेड विद रेड कलर। ये पिंकिश शेड दे रहे हैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, दीज आर गैसेस। और जो ये एंड वाला हमारे पास 18 में आते हैं तमाम एलिमेंट्स, दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस। बड़ी शरीफ गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस मीन्स दीज आर इनर्ट गैसेस। और इनर्ट गैस का मतलब ये होता है कि दोज गैसेस विच डू नॉट रिएक्ट, कि ये जो हैं ऑलमोस्ट रिएक्ट नहीं करती। क्या क्यों नहीं रिएक्ट करती? बिकॉज देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज़ कंप्लीट। तो ना इनको इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत है ना लेने की ज़रूरत है। ये स्टेबल कंडीशन में, इनकी इकॉनमी बड़ी मजबूत है। ठीक है।
तो दीज आर नोबल गैसेस। अब सॉलिड देख लिया आपने, लिक्विड देख लिया और गैसेस देख लिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो पीरियोडिक टेबल में आपको पर्पल पर्पल नज़र आ रहे हैं एलिमेंट्स। ये कौन से हैं? मुश्किल मुश्किल के नाम हैं और इनको हम कहते हैं सिंथेटिक एलिमेंट्स, जो कि लेटर डिस्कवर हुए। यानी कि अगर आप अर्ली बुक्स में देखेंगे तो आपको ये चीज़ नज़र नहीं आएगी, उस वक्त तक ये डिस्कवर नहीं हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे इसको ऐसे करके देख लेते हैं। ये ऐसे ब्लॉक है लेफ़्ट पे, ये मिडल में डी ब्लॉक है, फिर बी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एट द बॉटम। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ आपको बताया। अब मैंने आपसे कहा था काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो घर में पाई जाती हैं एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं 11 पीरियड में चले जाते हैं। कॉपर आप यूज़ करते हो ना, कॉपर आपके घरों की तार है, बिजली के बगैर तो घर रहता नहीं है। ठीक है, अब बिजली की तार में क्या यूज़ होता है? 100% कॉपर यूज़ होती है क्योंकि वही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। इसी तरह से एजी, अर्जेंटियम और सिल्वर जो कि काम आते हैं जेवरात में, जैसे कि ब्रेसलेट। ठीक है, मैंने कहा था ना ये घर में होते हैं। इसी तरह से देन इज एन अदर एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फाउंड इन होम, गोल्ड। किसी के भी उठा के दिखा सकते हैं। और इसके बाद एक और एलिमेंट आता है, दैट इज़ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के बर्तन घर में यूज़ होते हैं। मेरे पास बर्तन नहीं है, लेकिन रात को खाने में आ गया था बाहर से ऑर्डर, तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ एल्यूमिनियम फॉइल। ओके, इसी तरह से Fe इज़ आयरन। ठीक है, घर के हैंडल, दरवाजे, खिड़कियाँ किसके बनते हैं? आयरन के, ऑल्सो प्रेजेंट एट होम। और ये हैं चाबियाँ। ठीक है, तो इस तरह से बताने का मकसद ये था कि पीरियोडिक टेबल जो है ये ऐसा टेबल है कि इसके काफ़ी सारे एलिमेंट्स हमारे घर में पाए जाते हैं। तो जो टिकी है वो इस वक्त आपसे एक क्वेश्चन कर रहा है, और टिकी का क्वेश्चन क्या है? टिकी का क्वेश्चन ये है कि टिकी पूछ रहा है कि आप ज़रा ये बताओ थोड़ा सा कि पीरियोडिक टेबल में कौन सा लेटर मिसिंग है। यानी आप ABC से Z तक जाओ तो कौन सा लेटर मिसिंग है, हमें ज़रूर बताएं। टिकी इज़ वेटिंग फॉर इट। You can show your answer in the comment box. Thank you.